I'm going to go straight across to these pictures coming in of Prime Minister Narendra Modi, who is in fact in Greater Noida in the National Capital Region at this point in time. Take a look at these pictures coming in. The Prime Minister inaugurating the Uttar Pradesh International Trade Show today. Pictures are from Greater Noida, where the Prime Minister is already. It's a significant visit, inaugurating the UP International Trade Show and launching other multiple development projects also further on in his day when he's going to be moving to Rajasthan. He's going to be addressing the gathering also on the occasion is what is now being said. The Prime Minister inaugurating the UP International Trade Show. It's the theme, Ultimate Sourcing begins here, and it is being held from the 25th to the 29th of September. This is going to highlight the state's diverse craft traditions, modern industries, robust MSMEs, and emerging entrepreneurs in a single platform. Key sectors that will be represented includes handicrafts, textiles, leather, agriculture, food processing, IT, electronics, Ayush, among others. And this, remember, comes at a time when there's big relief that has come the way, in fact, gone the way of the people essentially when it comes to the new GST regime, essentially bringing down the taxes on so many commodities. The Prime Minister, of course, had categorically spoken about the fact that MSMEs were the key to self-reliant India and that the GST regime would boost savings, directly benefit all sectors of the society. This includes farmers, traders, micro, small and medium enterprises. Well, in this context, the Prime Minister is, in fact, in this backdrop, rather, the Prime Minister is in Greater Noida today interacting with small businesses. He's also, in fact, made an urgent appeal, really, to ask small businesses, states to back the Swadeshi movement. In the backdrop of this, the Prime Minister is in Greater Noida today, essentially at the trade fair, which is being organized by the Uttar Pradesh government. This is the International Trade Show. Pictures are from Greater Noida in Gautam Budh Nagar. I'm going to go straight across to my colleague Sushant, getting in more details on that big story that Sushant is tracking this morning. Sushant, MSME sector और स्मॉल बिजनेसेस के साथ प्रधानमंत्री इस समय इंटरैक्ट कर रहे हैं. ये ऐसे समय में आता है जबकि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जीएसटी रिफॉर्म्स में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस को होगा और इसी विषय में ये इंटरैक्शन हो रहा है इस समय. हाँ, देखिए, एक तरफ देश भर के अंदर जो केंद्र सरकार है वो जीएसटी बचत उत्सव जो है वो मना रही है और उसी बीच में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के अंदर जो है एक इंटरनेशनल ट्रेड शो जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है. खुद प्रधानमंत्री आज एमएसएमई के तमाम जो छोटे जो उद्योगपति हैं उनके साथ जो उद्योगों का कारोबार करते हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के वो राज्य चाहे वो सहारनपुर में वुडन का काम बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, मुरादाबाद के अंदर अगर देखा जाए मेटल का कारोबार है, वो तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी आज बड़ी एग्जीबिशन जो है उसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जो है वो पहुंचे हैं. खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद है. मैं आपको तस्वीरें सीधे दिखा दूं कि अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे थे और लगभग देश विदेश के तमाम जो अलग अलग कंट्रीज से जो लोग हैं वो इस ट्रेड फेयर के अंदर जो है वो पहुंचेंगे, शिरकत करेंगे. यूपी के हर जिले के अंदर जो कारोबार चलता है उस कारोबार की प्रदर्शनी जो है वो यहाँ पर लगाई गई है ताकि बिजनेस जो स्मॉल स्केल्स के जो बिजनेस हैं उनको बढ़ावा देने की कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है. इसके साथ साथ प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर में लोगों को संबोधित भी करेंगे और सिंगल काउंटर्स पर जाकर के उनसे मुलाकात करी, उनसे बातचीत करी, क्योंकि सरकार का मानना है कि जीएसटी बचत उत्सव में सबसे ज्यादा फायदा अगर हुआ है तो वो मीडियम क्लास को हुआ है. छोटे उद्योगपति जो है, जो छोटा कारोबार करते हैं, एमएसएमई जिसकी अगर बात की जाए, उनको ज्यादा फायदा जो है वो मिलता हुआ नजर आता है. तो उस बीच अब प्रधानमंत्री जो है वो पहुंचे हैं उनके बीच.
Sushant, getting in those details as far as this interaction with the traders here is concerned. Sushant, as far as the Prime Minister and this government is concerned, इनका नंबर 1 एजेंडा आत्मनिर्भर भारत है. इस पे प्रधानमंत्री ने और सरकार ने कई बार स्ट्रेस किया है कि स्वदेशी मूवमेंट में हमें फोकस करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर भारत में भी हमें फोकस करना पड़ेगा और इसलिए एमएसएमई सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है. निश्चित तौर पर एमएसएमई एक ऐसा उद्योग है जिसको बढ़ावा लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से जो है वो देते हुए नजर आए हैं. खुद योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से भी, और इसी तरीके के जो ट्रेड फेयर्स हैं उसका ऑर्गेनाइज जो है वो काफी ज्यादा उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो करती है. खास तौर पर देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी जो है वो जो एमएसएमई के जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश है ताकि स्वदेशी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा जो है वो दिया जा सके, आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश जो है वो की जा सके. क्योंकि अभी भी अगर हम देखेंगे तो चाहे वो अलग अलग फेस्टिवल्स हो, हमें विदेश के तमाम जो प्रोडक्ट्स है उस पर डिपेंड होना पड़ता है और सरकार नहीं चाहती कि हमें किसी देश पर जो है वो डिपेंड रहना पड़े, चाहे वो चाइना हो चाहे वो अमेरिका हो. ऐसे में सरकार चाहती है कि अगर अपने ही प्रोडक्ट्स को ज्यादा तवज्जो के साथ देश में प्रमोट किया जाएगा तो हमें दूसरे देशों पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हम अपने स्तर पर जो है वो अपने जो व्यापारी हैं, अपने जो एमएसएमई के जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा जो है वो दे सके. और यही वजह है कि सरकार उनको प्रोटेक्ट करने की पूरी तरीके से कोशिश जो है वो कर रही है और विदेशों से भी लोग इस कला में, इस जो बिजनेस है उसमें इन्वेस्ट करें, उनके कारोबार को बढ़ावा मिले. इस पर सरकार का फोकस जो है वो साफ तौर पर देखने को मिलता है. यही वजह है कि इंटरनेशनल ट्रेड शो जो ऑर्गेनाइज किया गया है ग्रेटर नोएडा में, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के हर जिले के जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि खास फेमस है, करोड़ों रुपए का कारोबार है. मुरादाबाद में अगर बात करें जो मेटल का एक बहुत बड़ा ब्रास का बहुत बड़ा बिजनेस है जहां से हम तकरीबन 17,000 करोड़ के 12 से 17,000 करोड़ के आसपास का बिजनेस अमेरिका के अंदर करते हैं. अमेरिका की तरफ से जब टैरिफ लगाया गया तो मेटल इंडस्ट्री पर भी जो है काफी ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला था. लेकिन प्रधानमंत्री की माने कि अगर अमेरिका के अंदर इसको भेजा जाता है तो क्यों ना इस प्रोडक्ट्स को जो है वो ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, इसको प्रमोट किया जाए, इसको प्रोटेक्ट किया जाए ताकि इंटरनेशनल जो कारोबार है यहाँ से लगभग 12 से 17,000 करोड़ रुपए का हर साल कारोबार जो है वो ब्रास का विदेशों में जाता है. अब अगर बात की जाए क्रिसमस है वहां पर गिफ्ट आइटम्स जो है वो जाती हैं ब्रास की, तो न्यू ईयर पर जो है उसका खास तवज्जो जो है वो दी जाती है. तो यही वजह है कि चाहते हैं कि देश जो है वो आत्मनिर्भर बने और देश के जो प्रोडक्ट्स हैं एमएसएमई के उनको बढ़ावा मिले. हमारे साथ जुड़ने के लिए there is Sushant getting in those details as far as this visit of the Prime Minister to the UP International Trade Show there is concerned. This, of course, is in perfect alignment with what the government has been saying about push for local products made in India. The Swadeshi movement is what the Prime Minister has spoken about, saying that the GST relief is going to greatly benefit the small and medium enterprises. He's spoken about the fact that this is going to essentially give a great deal of relief to the smaller players in the market and boost the domestic manufacturing sector with globally acclaimed quality products that eventually the Prime Minister had said will be fueling India's pursuit of prosperity on the back of a Swadeshi movement. The Prime Minister is there at the UP International Trade Show today. We have pictures of the Prime Minister interacting with the traders at this point in time. The Prime Minister is in UP International Trade Show today. This is in fact an important visit of the Prime Minister given he's inaugurating the UP International Trade Show. And this comes, like I said, in the backdrop of the kind of relief that has gone the way of small and medium enterprises. The event, of course, aimed at boosting investment and showcasing the state's industrial potential. लेदर उत्पाद, हस्तशिल्प और कारपेट्स में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है. बदलते वैश्विक आर्थिक परिवेश की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी रिफॉर्म्स के माध्यम से
एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम उठाया है। इसके लिए हम सब उत्तर प्रदेशवासी उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि वन नेशन वन टैक्स जुलाई 2017 में लागू हुआ था। टैक्स के अलग अलग जो रूप थे, जो न केवल एक व्यापारी को बल्कि एक उपभोक्ता को भी न केवल परेशान करते थे बल्कि भारी उलझन में डालते थे। 2017 में उठाए गए उन कदमों के उपरांत उस समय जो 4 स्लैब्स थे, उनमें मुख्य रूप से 2 स्लैब्स ही अब इस नई सुधार के अंदर जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से हम सबको देखने को मिलेंगे। और इसमें न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, पिछले 4 दिनों के अंदर हम लोगों ने इस बात का एहसास किया है कि मार्केट में एक नई जीवंतता देखने को मिली है। उपभोक्ता तेजी के साथ बाजार की ओर रुख किया है। क्या गरीब, क्या किसान, क्या श्रमिक, क्या व्यापारी, हर एक तबके को जैसे एक नया जीवन दान मिला है और इससे व्यापक पैमाने पर रोजगार के सृजन के साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए ओडीओपी सेक्टर के हमारे उद्यमियों को तो एक प्रकार का ये नया जीवन दान प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए हृदय से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश के अपने सभी नागरिकों की ओर से, यहां के उद्यमियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आज के इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन के अवसर पर वे यहां पर पधारे हैं। इस अवसर पर मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज अंत्योदय के प्रणेता सरदेव डॉक्टर Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath talking in great detail essentially about the importance of this event today, putting the focus on MSME sector and also to in a way aim at the event aimed at boosting investment, showcasing the state's industrial potential. Sushant continues to be with us for more on that. ये ट्रेड शो है, ये अलाइनमेंट में है मेक इन इंडिया जो गवर्नमेंट का विजन है, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टमेंट्स में भी इंक्रीज हो, ये सरकार ने कहा है कि ये पार्टिसिपेशन देखेगा। ये इवेंट जो है अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी से लीडिंग इंडस्ट्रियल हाउसेस और एंटरप्रेन्योर्स देश भर से। सुशांत, देखिए स्नेहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब अपनी बात शुरू करी तो सबसे पहले उन्होंने बात जीएसटी बचत उत्सव को लेकर की कि किस तरीके से देश भर के एमएसएमई के जो व्यापारी हैं उन सब के व्यापार को सरकार किस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहती है, उनके व्यापार को किस तरीके से बढ़ावा देना चाहती है। घरेलू उद्योग जो घरों के अंदर है, छोटे छोटे स्केल की इंडस्ट्रीज जो हैं उनको आगे किस तरीके से ले जाए, इसकी शुरुआत जो है वो योगी आदित्यनाथ ने करी। सीधे तौर पर केंद्र सरकार जो है वो इस पूरे इंडस्ट्रीज को जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि एमएसएमई के साथ साथ जो देश के छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिल सके। आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश जो है वो फिलहाल सरकार की तरफ से लगातार जारी है और यही वजह है कि स्वदेशी अपनाओ इसका नारा भी जो है वो लगातार प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार जो है वो देती हुई नजर आ रही है। देश भर में फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो चुकी है, नवरात्र और उसके बाद दीपावली, और ऐसे में जीएसटी की तरफ से जिस तरीके से बचत उत्सव सरकार बना रही है उसमें सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो व्यापारियों को जो है ये बिजनेस को प्रमोट करना, खास तौर पर उत्तर प्रदेश जो कि एक बड़ा राज्य है, केंद्र में अगर कहा जाए तो उसका सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश से आती हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के जो छोटे छोटे स्केल और घरेलू उद्योग जो हैं उनको प्रमोट किया जा सके, इसकी लगातार सरकार जो है वो कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि 25 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर यानी आज से इस पूरे इंटरनेशनल शो की जो है वो शुरुआत हुई है। खुद योगी आदित्यनाथ यहाँ पर